My name is Dr. Nabil Akram. So today my topic of presentation is post-traumatic cataract. So what is traumatic cataract? A traumatic cataract is clouding or opacification of lens, either due to any injury. It can be a blunt trauma, it can be a penetrating injury, could be an electric wire injury, or some radiation. So let us see traumatic cataract. A cataract formation is common sequel to blunt trauma, also associated with subluxation dislocation. Most common cause of unilateral cataract in young individuals. So American Academy says traumatic cataract is most commonly intumescent cataract. Can you tell me what is intumescent cataract? Can anyone tell me what is intumescent cataract? So, intumescent cataract is widening and swallowing of a lens. So, there are stalker lines you can see in an intumescent cataract, which differentiates it from hypermature cataract. So, the stalker lines we call it sectoral lines. Basically ना sectoral lines होती हैं, तो वो उसके अंदर होती हैं इंटुमिसेंट कैटरेक्ट में, और वो एंटीरियर कैप्सूल में जो है ना आपको वो नज़र आती हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमनली इंटुमिसेंट कैटरेक्ट बनता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में ना, और वैसे पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट भी बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं हम. सो ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट की एक डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं. तो ये जो है ना ये इंटुमिसेंट कैटरेक्ट है, और आप ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट देखेंगे कि इसमें जो है ना वाइटनिंग होती है, मतलब कैटरेक्ट की ना, और स्वेलिंग भी साथ होती है, और ये सेक्टोरल लाइंस आपको नजर आ रही हैं ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में. सो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी द वाइड स्प्रेड एडेशंस एंड स्कारिंग ऑफ आइरिस टू द लेंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट विद कंटिन्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस. अच्छा, ये एक डायग्राम है, मैं अभी इसको नहीं लिखा. इसके आइरिस पिगमेंटेशन हुई है लेंस के ऊपर. तो कोई मुझे बता सकता है कि ये बड़ा डायग्नोस्टिक है. ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में ना ये एक रिंग बनती है, तो इसको क्या कहते हैं? वॉशियस रिंग कहते हैं. शाबाश. सो व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज इज पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा. ब्लंट ट्रॉमा में एक कैरेक्टरिस्टिक रोजेट शेप कैटरेक्ट बनता है, फ्लावर शेप ओपेसिटी, एंड देयर इज इलेक्ट्रिक शॉक, lightning strike, anterior and posterior iridescent opacities that have a stellate pattern. ठीक है. इंफ्रारेड रेडिएशन में ये एक करेक्टरिस्टिक बनता है, इसको हम ग्लास ब्लोअर्स कैटरेक्ट कहते हैं. इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं ना वो एंडोथीलियम में जो है ना वो लगते हैं, तो हमें ऐसे एक जो है ना ग्लास ब्लोअर कैटरेक्ट जो है ना एक नज़र आता है. और आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि ऑकुलर ट्यूमर्स होते हैं, उसमें हम जो है ना ऑब्वियसली कीमो करते हैं और साथ रेडियो भी करते हैं, तो उसमें जो है ना ये पोस्टीरियर सब कैप्सूलर ओपेसिटीज भी बन सकती हैं. वॉशियस रिंग जो आपको मैंने अभी बताया था, रिंग शेप एंटीरियर सब कैप्सूलर opacity may underlie imprinting of iris pigment on anterior lens capsule. Commonly opacification occurs in posterior subcapsular cortex along the posterior sutures, may subsequently disappear, remain stationary or progress to maturity. So ट्रोमेटिक कैटरेक्ट यूजुअली अगर वो आपकी जो है ना विजुअल एक्यूटी को या आपकी मतलब विजन को जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसको जो है ना कैटरेक्ट सर्जरी करनी पड़ेगी उसके अंदर. तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो है ना ये किस लेवल तक जो है ना वो जो है ना ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है. कैटरेक्ट सर्जरी मे बी नेसेसरी फॉर विजुअली significant opacity. Lens protein leak can lead to secondary glaucoma and uveitis. So here is another diagram. So इसकी बहुत सारी और भी complications हैं, जैसे कि subluxation of lens. Subluxation of lens may occur secondary to tearing of suspensory ligament. A subluxated lens tends to deviate towards the meridian of intact zonule. The anterior chamber may deepen over the area of zonular dehiscence if the lens rotates posteriorly. The edge of subluxated lens may be visible under mydriasis. Trembling of iris, which is also called iridodonesis or lens phacodonesis on ocular movement. Subluxation to render the pupil partly aphakic may result in uniocular diplopia. Lenticular astigmatism due to tilting may occur. अच्छा, आगे वो बता रहा है कि dislocation due to 360 degree rupture of zonular fibers is rare.
and maybe into the vitreous or less commonly into the anterior chamber, and underlying predisposing condition should be suspected. ये डायग्राम है लेंस की, और पीछे से जो है ना वो आपको विट्रस भी दिखा रहा है, पीसी ये जो है ना रप्चर हुआ हुआ है, ये कम्प्लीटली जो है ना डिसलोकेट हुआ हुआ है लेंस जो है ना, ये 360 की दिखाई है डायग्राम, मगर ये इतना क्लियर इसमें जो है ना नहीं आ रहा। सो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में क्या है, हम देखते हैं कि ऑब्वियसली ट्रोमेटिक कैटरेक्ट आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अब उसमें यूजुअली क्या होता है कि कोई फॉरेन बॉडी आती है बाजू का, या कोई इंजरी होती है, जैसे मैंने अपनी रेजिडेंसी के स्टार्ट में देखा था, एक बैटरी ब्लास्ट का देखा था, तो वो उसमें बिल्कुल मिडरेसिस हुआ था, एक बिल्कुल वाइट कलर का जो है ना कैटरेक्ट था, मुझे अभी तक याद है। तो उसमें आप देखते हैं कि कॉर्निया डैमेज है कि नहीं है। अगर कॉर्निया डैमेज है तो आपकी सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए कि आपने कॉर्निया को जो है ना सील करना है और आपने एसी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है ना कॉर्निया को जो है ना मेंटेन करेंगे, आप जो है ना 10-0 सूचर से उसको जो है ना आप करेंगे, रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप एसी को मेंटेन करेंगे। उसके बाद आप जो है ना क्या करेंगे कि लेंस की इंटेग्रिटी को देखेंगे। सबसे पहले आप उसके कैप्सूल को देखेंगे कि आया उसका एंटीरियर कैप्सूल इंटैक्ट है कि नहीं है। अगर तो वो इंटैक्ट है, वेल एंड गुड, यू कैन डू सीसीसी एंड यू कैन रिमूव कैटरेक्ट, ठीक है ना, और उसके बाद आप आईओएल इन प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एंटीरियर कैप्सूल इंटैक्ट नहीं है, वो कहीं से डैमेज है, या मतलब वो जो है ना को जो भी इंजरी हुई है उसने किया, तो हम यूजुअली रेक्सिस भी कर सकते हैं, मगर हम यूजुअली जो एक हम जैसे एक्स्ट्रा कैप में करते हैं, या हम वाना सीजर यूज़ करके उसको जो है ना करके कैप्सुलोटमी करके उसके बाद जो है ना उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका एंटीरियर जो है ना कैप्सूल अगर मतलब है यहाँ तक। अगर उसके बाद फॉर एग्जांपल साइनिक्स बन गए हैं, साइनिक्स बन जाते हैं, प्यूपिल जो है ना डायलेट नहीं हो रहा होता, तो फिर आप उसको स्वाइप करेंगे, आप स्वाइप करेंगे उसको जो है ना, और आप आइरिस हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप स्वाइप करके उसको मतलब साइडों से उसको फ्री करेंगे। उसके बाद आप जो है ना कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद जो पीसी रप्चर है उसकी अलग मैनेजमेंट है, अगर वो है, अगर आपका सबलेक्सेशन हो गई है पूरी, तो उसकी एक अलग मैनेजमेंट है। अगर विट्रस आगे आ रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसमें मतलब यह है कि एंटीरियर विट्रेक्टमी करेंगे, एंटीरियर विट्रेक्टमी करेंगे। उसके बाद जो है ना हम चेक करेंगे कि आया मतलब मेंटेन है, इसको हम आईओएल प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। A slowly progressive or stationary cataract, especially dense cataract with a history of ocular trauma, should be removed if only visually significant for the patient. Gross visual defects, afferent pupillary defects, sphincter tears, iridodialysis, elevated or abnormal low IOP, angle anomalies, ultrasound evidence of posterior segment pathology should be looked by the surgeon. विजुअलाइजेशन इन केस ऑफ कॉर्नियल लेसिरेशन, जो मैंने आपको बताया कि कॉर्निया को सबसे पहले आपने जो है ना सिक्योर करना है। एडीमा विच इम्पेयर्स एबिलिटी टू रिमूव लेंस मेटल, ओपन स्काई अप्रोच, ये एक मेथड होता है, ओपन स्काई अप्रोच होती है। तो इससे इसके थ्रू जो है ना हम मतलब इसको कॉर्निया को रिपेयर करते हैं। मतलब ये यूजुअली वैसे केराटोप्रोस्थेसिस में या केराटोप्लास्टीज में यही अप्रोच जो है ना हम करते हैं। इन केस ऑफ हेमरेज इंटरफेयरिंग विद व्यू, ओवीडी एयर इज हेल्पफुल। अगर हेमरेज हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपने हेमरेज को रिमूव करना है, एसी वॉश करना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपका एंडोथीलियल स्टेन हो जाएगा। अगर एंडोथीलियम स्टेन हो जाएगा तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना विस्को इलास्टिक जेल जो है ना आप इंसर्ट करें और उसको फिर रिमूव करें। जितनी आप जल्दी रिमूव करेंगे तो वो स्टेन नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो है ना ये रिमूव करना चाहिए। उसके बाद आप जो है ना बाकी उसकी चीज़ें देखें, इंटेग्रिटी लेंस की। Inflammation. In case of synex, pupil seclusion, distortion, gentle sweeping to dilate pupilloplasty. You can do peripheral iridectomy to prevent pupillary blocks, and you can give medicines such as cycloplegics, topical and oral steroid therapy. Lens implantation. Primary IOL insertion when intraocular inflammation and hemorrhage are minimal and view of anterior segment structures is good. सो इफ देयर इज अ फॉरेन बॉडी, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे। एज माई सर टोल्ड अस कि अगर कोई भी ट्रॉमा आता है तो सबसे पहले आप उसका एक्सरे करवाएंगे। सबसे पहले आपने उसका एक्सरे करवाना है।
उसके बाद आपने सीटी करवाना है। और एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? एमआरआई अगर मेटेलिक बॉडी है तो आप एमआरआई नहीं करवाएंगे फॉरेन बॉडी में। अगर आपको श्योर है कि मेटेलिक बॉडी नहीं है तो तब आप एमआरआई करवा सकते हैं। अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको मतलब है कि फॉरेन बॉडी है, रिटेन फॉरेन मैटर है, तो अगर व्यू क्लियर है तो आप इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपको बताया सीटी स्कैन कर सकते हैं, आप बी स्कैन कर सकते हैं, और एमआरआई इफ मेटेलिक बॉडी नॉट प्रेजेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजुअली हमने देखा है कि हम अगर जैसे इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी है या लेंस में है तो हम उसको पास प्लानर विट्रेक्टमी के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं। वी डू पास प्लानर विट्रेक्टमी, देन देयर इज रिमूवल ऑफ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी एंड देन वी क्लोज द केस। Pars plantar vitrectomy, anterior approach along with lens implantation, then pars plantar vitrectomy, irrigating solution to dislodge foreign body intracamerally. If there are damage to other ocular tissues in sphincter damage, distortion and iridodialysis, repair by suturing iris root to scleral spur. If there is zonal dehiscence and dislocation, OVD tamponade of vitreous, capsular tension ring in capsular bag, removal of cataract through pars plana and ACIOL placement. Transscleral fixated PCIOL. Thank you. बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी। थोड़ा सा मुझे इसमें आप what types of glaucoma associated with this, इसके लिए थोड़ा सा सर इसमें ये होता है कि जो यूजुअली जब ये डेहिसेंस होती है ना तो एंगल रिसेशन ग्लोकोमा होता है, क्योंकि लेंस जो होता है ना वो आगे को डेविएट, इसकी जो टेंडेंसी है वो आगे को डेविएट करने की ज़्यादा है बजाय इसके कि पीछे जाने की। पीछे भी जा सकता है मगर यूजुअली ये आगे आता है और इससे एंगल रिसेशन ग्लोकोमा होता है। और इससे सर दूसरा जो आइरिस पिगमेंटेशन होती हैं और मतलब जाहिर है कि वो आइरिस पिगमेंट रिमूव होते हैं, तो इससे सर जो है ना प्राइमरी जो है ना सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा भी हो सकता है पिगमेंट्स के बाद, क्योंकि वो ट्रेबुलर मेशवर्क को जो है ना ब्लॉक करेंगे। यूजुअली इससे सर एंगल रिसेशन ग्लोकोमा ही होता है। और लेंस के साथ associated कौन-कौन से? सर लेंस के साथ इसका बेसिकली ये इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट है, तो ये जो है ना आपका फेकोमॉर्फिक मतलब जो है ना इसमें ग्लोकोमा होता है। अगर प्रोटीन लीक होने लग जाए तो फेकोलिटिक ग्लोकोमा भी हो सकता है सर। और प्यूपिल ग्लोकोमा तो मतलब जी सर है इसमें, और उसके लिए हम फिर इरिडेक्टमी भी कर सकते हैं और ताकि इसको जो है ना वो